مولوی صاحب آج جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ دیش کہاں سے کہاں جا رہا ہے، دیش کی بات کی جائے، اور ابھی سوریہ نمسکار کا جو معاملہ ہو رہا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوریہ نمسکار کی مخالفت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کی ہے۔ ان کے آنریبل ہمارے معزز جنرل سیکریٹری معروف فقیہ عالم اسلام کے بڑے مقبول عالم دین حضرت مولانا محمد خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے سوریہ نمسکار کے خلاف باضابطہ بیان جاری فرمایا ہے۔ وہ بیان صرف حضرت مولانا کا نہیں بلکہ بیان پورے ہندوستان میں بسنے والے کروڑوں مسلمان اور دوسرے وہ تمام لوگ جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں ان سب کی ترجمانی ہے۔ سوریہ نمسکار ایک پوجا ہے، اور ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کی مسلمانیت اور اسلام کی شان اسی میں مخفی ہے اور اسی میں ظاہر ہے کہ مسلمان ایک اللہ کے سوا نہ دوسرے کو مانتا ہے اور دوسرے کو جانتا بھی نہیں ہے، مانتا بھی نہیں ہے اور ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے خدا کو جانتا بھی نہیں ہے۔ سوریہ نمسکار مسلمان بچوں سے کروانا سرکاری اسکولوں میں یہ ہندوستان کے سمویدھان کنسٹیٹیوشن کے فنڈامنٹل وائس، اس کی آواز، اس کی سوچ کے خلاف ہے۔ بھارت سرکار ایک سیکولر سرکار ہے، اس کا کام یہ نہیں کہ اسکولوں میں کون نماز پڑھے گا اور کون پوجا کرے گا۔ جو لوگ نماز پڑھنا چاہیں ان کو اپنی آزادی ہے، جو پوجا کرنا چاہیں انہیں اپنی آزادی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے یہ پابندی لگانا کہ جو بچے سرکاری اسکولوں میں آئیں گے وہ سوریہ نمسکار کریں گے، بہت جابرانہ نظام ہے، یہ بہت غلط روش ہے۔ مسلمانوں کے اربوں روپے ٹیکس میں جاتے ہیں، مسلمانوں کے بچے بھی سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہم سوریہ نمسکار نہیں کریں گے، چاہے پڑھانا ہو تو پڑھائیں گے، نہیں پڑھانا ہو تو نہیں پڑھائیں گے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لے کہ مسلمان اپنی غریبی، افلاس، مظلومیت اور تمام تر تباہی اور زوال کے باوجود خدا کی قسم قیامت کی اگلی صبح تک اسلام کے کسی ایک تصور میں بھی کسی حکومت کی کوئی مداخلت اور کسی کی کوئی ملاوٹ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ماضی میں کبھی رہا ہے نہ آئندہ کبھی رہے گا، لہٰذا ہم اسے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ سوریہ نمسکار ہی نہیں، جب سے بی جے پی گورنمنٹ آئی ہے دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں کو اس طریقے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ کبھی سوریہ نمسکار پر بولا جا رہا ہے تو کبھی بی جے پی کے پاٹ پڑھائے جا رہے ہیں، کبھی رام کا پاٹ پڑھایا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہندوستان کس لیول پہ جا رہا ہے؟ نہیں، اگر گورنمنٹ آف انڈیا جنرل نالج کے طور پر چاہتی ہے کہ جو بڑے مہاپروش رہے ہیں ان کا پریچے ہو، رامائن، مہابھارت، گیتا، اور بڑے لوگوں سے ہمارے بچوں کو پریچے کروایا جائے تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں صرف رامائن ہی کیوں، پھر قرآن کو بھی شامل کر لیا جائے۔ مسلمان بچے اگر رامائن کو سمجھ سکتے ہیں تو ہمارے ہندو بھائیوں کے بچوں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو قرآن نہیں سمجھ سکتے؟ وہ آپ ان کو کیوں ونچت رکھتے ہیں؟ بھائی، پرشوتم مہاپروش رام جی کو اگر ایک مسلمان سمجھ سکتا ہے، اور سمجھنا چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ہم بھارت میں اس بات کو سمجھنا اچھی بات ہے کہ مریادہ پرشوتم رام جی کون تھے، شری کرشن جی کون تھے، تو کیا ہندو بھائیوں کے بچوں کو اور ہمارے ہندو بھائیوں کے بچوں کو یہ جاننے کا کوئی حق نہیں کہ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے مہاپروش تھے، کہ جن پر لاکھوں ہمارے ہندو بھائیوں نے نعت لکھی ہے؟ وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مہاپروش تھے جن پر لاکھوں ہندو بھائیوں نے کتابیں لکھی ہے، ان کی جیونی پر، ان کی سیرت پر؟ تو آپ ساری چیزوں کو پھر اکول لاگو کیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی سیرت پڑھائیے، لیکن محض ایک چیز کو بتانا اور اس کو ٹارگٹ کر کرنا، مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے بچوں کو دین سے ورغلانے کی ناپاک سازش ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کو اس کا جم کر مقابلہ اس طرح سے کرنا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، سوریہ نمسکار نہ کرتے ہوئے اپنی پڑھائی کو مکمل کرنا، اور اس کی اجازت ہمیں سمویدھان دیتا ہے، چاہے گودی میڈیا چاہے جتنی بھی چیخ لیں اور جتنا بھی پکار لیں۔ ایسا نہیں لگتا ہے کہ آر ایس ایس کے موہن بھاگ بی جے پی گورنمنٹ جو چلا رہے ہیں؟ یہ تو بی جے پی جانے ان کو کون چلا رہا ہے، اور آر ایس ایس جانے کہ وہ کتنا چلا رہی نہیں چلا رہی، ہمارا وشے نہیں ہے، دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی ہے۔ ابھی یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ مہاتما گاندھی جی جو آزادی کے لیے، آزادی نہ صرف مہاتما گاندھی بلکہ ہمارے کئی لوگ جو رہے وہ آزادی کے لیے اپنی جان قربان کیے ہیں،
मगर अभी महात्मा गांधी जी को लेकर के जिस तरीके से मुल्क में एक अलग निजाम बनाया जा रहा है और बरगलाने की जो कोशिश की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इस मुल्क की बदकिस्मती रही है कि जिसने देश को सारे लोगों को लेकर महात्मा गांधी जी ने पूरे मुल्क को आजाद करवाया। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो आजादी के सिपाहियों की और आजादी के काफिले की को लीड वो कर रहे थे, और उनका बड़ा बलिदान है, उनकी बड़ी त्याग है, उनकी बड़ी तपस्या है। गांधी जी एक महान शख्सियत का नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि भारत में रहने वाले हर शहरी और नागरिक और सिटीजन के लिए वो एक रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जिस देश को उन्होंने आजाद कराया, बदले में इस देश के एक आतंकवादी ने उनको गोली मारकर खत्म कर दिया। और आज इतने साल गुजर जाने के बाद उसी आतंकवादी के वंशज और उनकी औलादें अब गांधी जी को गालियां दे रही हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी हुकूमत भी सुनकर आंखें बंद कर लेती है, वरना ऐसे लोगों की हिम्मत कैसे हो कि किसी भी महापुरुष के बारे में वो उलट पुलट बातें करें या गालियां दे। कोई भी महापुरुष हो हमारे देश में या दुनिया के किसी भी लोगों की आस्था जिनसे जुड़ी हुई है, उनको बुरा भला कहने के हम हक में नहीं है। ऐसे कॉम्युनल फीलिंग लोगों में, हिंदुओं में डाला जा रहा है, कैसे बचा जा सके, जरा बताएं। ये देखिए, अभी जैसे सूर्य नमस्कार का मामला है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसकी मुखालिफत की तो फौरन उसके काउंटर में एक बयान आ गया। अच्छा, बयान किसका आया है? बयान आता है माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब का बयान आता है। और मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो है वो अपने दिल का भड़ास निकालते हैं, दिल की भड़ास निकालते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब सिर्फ इसी के लिए है क्या कि वो मुसलमानों को गालियां देते रहे? वो वसीम रिजवी की कार्बन कॉपी बन गए हैं। वो सिर्फ इसी के लिए है कि जब कोई शरीयत की बात करे तो उसको कहें कि तालिबानी सोच है, जब कोई कुरान हदीस की बात करे तो वो ये कहें कि ये साहब ऑर्थोडॉक्स की बातें हैं। धर्म संसद में जब गालियां बकी जा रही थी, उस वक्त जब मुख्तार अब्बास नकवी साहब की जबान में दही जम गई थी, वो मिनिस्टर है माइनॉरिटी अफेयर्स के या नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट की? नौकर बनकर रह गए वो। अगर उनको बोलना है तो उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते जिन्होंने धर्म संसद में खड़े होकर लोगों के कत्लेआम की बात की है? अभी मुस्लिम औरतों के बारे में इतनी बड़ी बदतमीजी हुई सुल्ली बुल्ली के नाम पर कि मुस्लिम बहनों को बेचा जा रहा है। मुझे शर्म आती है कि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री जी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब अभी चंद साल पहले ट्रिपल तलाक के केस के मामले में कह रहे थे भारत के मुस्लिम महिलाओं का मैं भाई हूं। आज वो भाई कहां चले गए? उनकी बहनों को बेचा जा रहा है। आज उस भाई को ख्याल नहीं आ रहा कि हमारी बहनों का क्या हो रहा है। क्या ये गैरत की बात है? उस पर मुख्तार अब्बास नकवी खामोश रहते, उस पर उनको बोला नहीं जाता, क्योंकि जानते कि उस पर बोलेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। जहां तक रही कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की, देखिए इस देश के जो करोड़ों हिंदू भाई हैं उनको हम इन मुट्ठी भर लोगों की वजह कर डाउटफुल नहीं करार दे सकते। ये मेरी पॉलिसी, मेरी सोच, मेरी फिक्र, मेरा कंसेप्ट ये बहुत पुराना है, अभी भी है और आइंदा भी रहेगा। क्योंकि मैं तारीख थोड़ी बहुत जानता हूं। इस मुल्क में मुसलमानों पर हिंदू भाइयों के बड़े एहसानात हैं। हम नवल किशोर जी को नहीं भूल सकते जिन्होंने कुरान की खिदमत की, लखनऊ के नवल किशोर जी जिन्होंने बरसहा बरस तक कुरान करीम की खिदमत की है। हम विशंभरनाथ पांडे जी को भूल नहीं सकते, हम आर के गर्ग जी को भूल नहीं सकते, हम सुधात शंकर रे जी को भूल नहीं सकते, हम बड़े बड़े महापुरुष और पंडितों को नहीं भूल सकते जो मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ बैठा करते थे और बैठकर उन्होंने कितने भाइयों ने नाते लिखी हैं। आज लखनऊ में एक बड़े शायर है नात के, वो शायर है लेकिन नात बड़ी अच्छी लिखते हैं, पंडित हनुमान प्रसाद जी। तो हम चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह कर भारत के करोड़ों हिंदू भाइयों को हम शक की नजर से देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम जो पहले इज्जत किया करते थे इंशाअल्लाह और ज्यादा बढ़कर उनकी इज्जत करेंगे। अब क्या कर लोगे तुम? अब मुसलमान क्या अब अपनी लड़ाई के साथ ही साथ गांधी जी पर जिस तरीके से हमला हुआ और मुसलमानों को वहां पे एक टारगेट बनाया गया है, आपने खुद भी सुना होगा कि मुसलमानों को टारगेट बनाया गया और गांधी जी पर हमला हुआ, तो क्या मुसलमान अपनी लड़ाई के साथ साथ गांधी की भी लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, जब आदमी पागल हो जाता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो वो उल्टी सीधी तरफ जो है पत्थर फेंकने लगता है। ये लोग परेशान हैं। ये जो स्वामी होते हैं, पंडित होते हैं और बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, तो भारत के अंदर
जो आस्था और विश्वास रखने वाले लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, सनातन धर्म से जो मुताल्लिक लोग हैं, जिनको हम लोग सन्यासी भी कहते हैं, स्वामी जी भी कहते हैं, पंडित जी भी कहते हैं, इनकी पहचान ये रही है कि इनकी भाषा में शालीनता हुआ करती है, बहुत नर्म भाषा इस्तेमाल करते हैं। इनकी पहचान थी ये करुणा, माया, दया, क्षमा के साथ चला करते थे। लेकिन अभी खतरे की बात इन तमाम सनातन धर्म के धार्मिक विद्वानों पर एक खतरा मंडला रहा है। वो ये मंडला रहा है कि अब उनके वस्त्र को कुछ गुंडे मवाली हाईजैक कर रहे हैं। जैसे पहले आतंकवादी लोग टोपी पहन लिया करते थे, हालांकि टोपी से कोई मतलब नहीं, लेकिन बताने के लिए कि मैं मुसलमान हूं। तो अब कुछ गुंडे मवाली और कुछ बिल्कुल लिच्चड़ किस्म के लोग, चवन्नी पे बिकने वाले, रात में गांजा पीकर सो जाने वाले, सुबह उठकर दूसरों की चीर हनन करने वाले, इस तरह के लोग हमारे सनातन धर्म के महापुरुषों के वस्त्र को हाईजैक कर रहे हैं, जैसे गिरवत लिबास। लेकिन उनके भाषाओं को देख लीजिए तो उनके वस्त्र को देखकर लगता है कि ये सन्यासी हैं, मगर चरित्र को देखकर लगता है कि वो सारे के सारे सत्यानाशी हैं। तो ये जो बड़ा डिफरेंट है कि चरित्र और वस्त्र, ये बड़ा फर्क आ गया। तो सनातन धर्म के सच्चे लोगों को अपने वस्त्र की रक्षा की जरूरत पड़ गई है। रही बात कि उन्होंने कहा मुसलमानों को काट दो, मार दो, हम इसे जूतियों के नोक पे रखते हैं, जूतियों के नोक पे रखते हैं। सुनो, जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। जब तक अल्लाह ने हमें जिंदा रखने का फैसला किया है, तुम कुछ नहीं कर सकते, और जिस दिन मौत आएगी उस दिन तुम हमें बचा नहीं सकते। लेकिन ये बातें क्यों कही जा रही है? ये बातें इसलिए कही जा रही है कि वो लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए और वो लोग परेशान हो गए हैं। अब सोचिए आपके पहले जो है इस्लाम को गालियां देने के लिए इंपोर्टेड माल मंगवाए जाते थे, बांग्लादेश से तस्लीमा नसरीन को बुलाया जाता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि यही शायद फैक्ट्री खुल गई है और तस्लीमा नसरीन और सलमान रुश्दी के जॉइंट अकाउंट से कुछ यहां भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गए। तो अब जो लोकल माल मार्केट में आ रहे हैं, अब इन लोगों ने कहा कि कारोबार अच्छा, ये धंधा हम ही शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि संविधान के खिलाफ बोलने वाला, महापुरुषों के खिलाफ बोलने वाला, लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करने वाला, किसी समाज को बुरा कहने वाला, उनको लगाम दे, उनको रोके। लेकिन ये चाह ये रहे हैं, धर्म संसद के नाम पर जो नफरती संसद हुए हैं, नफरत संसद, ये चाहते हैं कि गृह युद्ध हो जाए, सिविल वॉर हो जाए। इंशाल्लाह यहां भारत में कभी ऐसा नहीं होगा ही नहीं, इसलिए कि हम करेंगे नहीं। हमारा सिंगल कंसेप्ट है कि इस देश की अखंडता को बचाते हुए इसको विकास के महा ऊंचाई पर लेकर जाना है, और जो जो इसके बीच में रुकावट बनेगा उन सबको बीच से हटा देना है। गांधी जी पर इतनी बड़ी बात कही गई, मगर कांग्रेस जो है वो बहुत खामोशी के साथ, एहतजाज तो किया गया, मगर जिस लेवल पर कांग्रेस को एहतजाज करना चाहिए वो नजर नहीं आया। देखिए, ये बात किसी हद तक सही है आपकी कि गांधी जी के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है और जितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसकी जो मुखालिफत होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। ये कहीं ना कहीं बुजदिली और पॉलिसी पे रंग चढ़ती हुई अलामत है। तो क्या इसकी मुखालिफत सिर्फ मुसलमान करेंगे? मुसलमान हर बुरी और बुराई और हर गलत चीज की मुखालिफत करते हैं, किया है और आइंदा भी करेंगे इंशाअल्लाह। ये हमारी मजहबी जिम्मेदारी है, ये हमारा धार्मिक कर्तव्य है। आप अपनी आवाज को किस लेवल तक, कितनी ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं और कैसे पहुंचाइए? जहां तक आपको लोग देखने लगे वहां तक पहुंचाएंगे, जहां तक सोशल मीडिया पहुंच जाए। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के मुताबिक आप थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे नहीं, या नहीं? हो रहा है। धर्म संसद के नाम पर जो बदतमीजियां हुई हैं, उन पर कुछ कार्रवाइयां हो रही हैं। उत्तराखंड पुलिस ने FIR किया है, लेकिन अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक गिरफ्तार हो चुका होता। तो पुलिस की वर्दी में हमने उत्तराखंड में अभी एक वीडियो मैंने देखा कि एक साहब जो हैं, जो लोग नित्यानंद सिंह साहब और उनके कुछ लोग पुलिस में FIR करने गए थे, और वो कह रहे हैं ये बच्चा पुलिस का तो हमारा ही कहाँ जाएगा, तो ठाड़गे मार रहे थे। तो उस वीडियो में मुझे देखकर लग रहा है कि पुलिस की वर्दी में एक आदमी मुजरा कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कानून की वर्दी पहनने वाले आदमी के सामने कोई मजाक कर ले, कोई उसके पीठ पे हाथ रख ले, इतना आसान है? उत्तराखंड पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पता नहीं कैसी इन्वेस्टिगेशन कर रही है।
हमारे कलकत्ता से कोई आवाज उठी है कुछ ऐसा, मतलब ये आवाज यहीं से उठ रही है ना माशाल्लाह। कानूनी तौर पर अभी इसका इल्म नहीं है, अभी इसका इल्म नहीं है। ये इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है हिंदुस्तान में, प्राइम मिनिस्टर से या फिर स्टेट के वजीर आला से, आप किसी तरह का अपील करेंगे ये सूर्य नमस्कार से लेकर के और गांधी जी तक? देखिए, बंगाल में जो ऑलरेडी गवर्नमेंट है ये बहुत सेकुलर गवर्नमेंट है, और मैं देख रहा हूं कि ये सारे समाज के लिए, मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सब लोगों के लिए वो यकसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, जिनको हम लोग प्यार से दीदी भी कहते हैं, वो बहुत काम कर रही हैं और करना चाह रही हैं। इस तरह के किसी तुगलकी फरमान को जो नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ हो और मुसलमानों के तौहीद और ईमान पर वार होता हो, मुझे नहीं लगता है कि बंगाल गवर्नमेंट कभी इस चीज को परमिट करेगी, और न कभी की है, और आइंदा भी मुझे उम्मीद नहीं है। बंगाल एक पीसफुल स्टेट है और इंशाल्लाह इसको पीसफुल रखने में हम पूरी मदद करेंगे इंशाल्लाह। अगर इस तरह का अगर बंगाल में होता है ये सूर्य नमस्कार की बात जो है, अगर यहाँ के स्कूलों में अगर अप्लाई करने की बात आती है तो क्या करेंगे? देखिए, पहली बात, हमें भरोसा है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा पर कि वो इसको आने ही नहीं देंगी, लेकिन अगर किसी चोर दरवाजे से आ गया तो हम मुखालिफत करेंगे, हम उनको मुतवज्जह करेंगे।